Yes, sir. Now, the next definition is subset. Subset. What is meant by subset? Yes, sir. We see, let us suppose we'll take an example and say that A is equals to 3, 7, 9 and B is equal to 2, 3, 6, 7, 8, 9. So what do you see here? What you observe here? What you can see here is this 3 is in set B. सेट बी में भी है, सेट ए में है और Sir. बी में है, और एलिमेंट 7 इज इन ए एंड इन बी, 9 इज इन ए एंड बी. तो ये पूरा सेट जो है Yes, sir. सेट बी में है ना. Yes, sir. तो whenever this set is contained in set B, we call it as A as the subset of B. A is the subset of B. And B, how is B? Set B में element 2 और 6 और ये extra है. So Yes, sir. as a superset of A. A is a subset of B and B is the superset of A. Okay. So the set, Yes, sir. the set is said to be, set A is said to be the set A is said to be the subset of B if every element of set A is an element of set B. Okay. If every element of set A is an element of set B, then we call it as a subset of B. The set B is called superset of A. So we write as A is, this is a symbol for contained in R equal to B. Okay. Now B contains A. B contains A. R equal to A. R equal to A. Sir, not saying. Now it's coming. Now it is coming. Full, voice is full. Let us take A is equal to A E I O U. B is equal to
A, B, C, E, I, O, U, G. So every element of set A is in B, and B is also having uh, other elements in A, other than elements of A also they are present here. So we call A is the proper subset. Proper subset. Okay. तो ए में Yes, जो sir. एलिमेंट्स है उससे भी ज्यादा है तो उसको एक प्रॉपर सबसेट बोलते हैं. पहला जो भी है सबसेट होता है उसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं. तो जब एलिमेंट्स ए का अलावा उससे ज्यादा एलिमेंट्स बी में है तो उसको ए को प्रॉपर सबसेट बोलते हैं. ओके. अदरवाइज इसको इम्प्रॉपर सबसेट लिखो. So let us consider one more example. Let x equals to 3, 4, 5 and y equal to 3, 4, 5. X is contained in y. Y is contained in x. है ना? हर एक एलिमेंट x का y का भी एलिमेंट है. And the element of y is also an element of x. So you can say x is a subset of y. It is improper subset of y, and also can write x equals to y. X is equals to y. है ना? Every Yes, sir. element of set x is contained in or is an element of set y, and every element of y is an element of set x. Then we write that x equals to y, and x is called improper subset. Improper subset. So x is called improper subset of y. Okay. एलिमेंट्स अगर डिफरेंट है x का अलावा दूसरा भी है तो प्रॉपर सबसेट होता है. इक्वल Yes, है sir. तो इम्प्रॉपर सबसेट है. ओके. क्लियर? ओके. Yes, sir. Let us list out all the possible subsets of x, where Of x. x equals to 3, 4, 5. So कौन सा है? पहला सबसेट है 5, empty set. Empty set is the subset of every set. समझे? Yes, sir. और यहाँ पर लेंगे एक एलिमेंट 3, ये भी उसमें है ना, और एक 4 लेंगे, और एक 5 लेंगे, और एक 3, 4 ले सकते हैं, Yes, और sir. क्या ले सकते हैं? 3, 5 ले सकते हैं, और 3, 5. 5 ले सकते हैं. Yes, sir. 3, 4, 5 भी ले सकते हैं. So this is the proper. Clear? 1, 2, Yes, sir. many are there? Count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ गए. 8 subsets आए. Okay? So अगर elements, number of element in set x is 3 है, तो हमको number of subsets कितना आ गए? देखो 2 power 3 आए. That is 2 into 2 into 2. That is 8 आए. Two. तो मतलब फॉर्मूला क्या है बोलो तो, अगर हमको n of x is equal to, suppose we say that यहाँ पर an अलग है, an अलग है, otherwise you can Yes, say sir. m, then cardinal number m है,
ऑर्डिनल नंबर m है, देन n नंबर ऑफ सबसेट्स कितना रहेगा? नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी इक्वल टू 2 पावर m. ओके, नंबर ऑफ पूरा सबसेट्स में क्या आया? ये पूरा जो भी है ये प्रॉपर सबसेट्स है. अगर इम्प्रॉपर yes sir सबसेट तो इम्प्रॉपर सबसेट चाहिए, नहीं तो इम्प्रॉपर सबसेट को निकाल दीजिए और खाली हमको प्रॉपर सबसेट्स होना चाहिए. इसका मतलब 3 4 5 चले जाएगा, तो एक चले जाएगा. इसलिए गेट नंबर ऑफ impro that is number of proper subsets, number of proper subsets substance is equal to 2 power m minus 1. एक कम हो जाएगा. ओके, yes sir yes sir और ये पॉसिबल सबसेट्स को लेकर एक सेट होता है. मीन्स पॉसिबल Yes, sir. सबसेट से सबसेट्स को एक एक एलिमेंट बनाते हुए हम एक सेट बनाते हैं. इसको कहते हैं पावर सेट. क्या बोलते हैं इसको? पावर सेट. power तो set. किसका ये पावर सेट ऑफ x है? सो p ऑफ x इज इक्वल टू, हमने x दिया है, पावर सेट ऑफ x में क्या रहता है? ऑल द पॉसिबल सबसेट्स रहता है. और ये पावर सेट का एलिमेंट्स कितना रहता है? 2 पावर m. 2 पावर Yeah. m रहता है. Yeah. The number of proper subsets in power set is 2 power m minus 1. Sujana, what happened? Nothing, sir. Okay. This is what regarding improper subset, power set, okay, and their elements. Did you understand now? Yes sir Okay, right now. Write the power set of the set A where A equal to A, B. All of you write the power set of A. Power set of A is equals to, चेक कर लो, एम्प्टी सेट एक होता है और सेट ए होता है और सेट बी होता है और ए बी होता है. ठीक है, तो कितना है? 1 2 3 4 4 ही आना ना. तो एन ऑफ ए कितना है? 2 है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितना आना चाहिए? 2 पावर 2, that is 4. Power 2, that is 4. Okay, write down. Now, please note a point that empty set is the subset of every set. हर एक का ये सबसेट होता है. Also, not number 1, not number 2. If you look at the set A is contained in set A. So A is the subset of itself. A is the subset of A. Every set is a subset of itself and it is a improper subset. So every set is the subset of itself.
Okay, every set is the subset of itself. ये दो पॉइंट्स लिखिए. The next topic is universal set. जैसा में यूनिवर्स में क्या रहता है, पूरा हर एक प्लैनेट, हर एक कॉमेट, हर एक चीज उसमें ही रहता है ना. तो सब कुछ रहता है उसमें. Yes, sir. तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में, okay, all the, what does it contain? It contains all those elements from the all the subsets of which it forms. So please write down the definition of universal set. The set that contains the elements of all the considerable subsets is the universal set, is denoted by U or mu. इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट में हर एक एलिमेंट रहता, जो कंसिडरेबल सबसेट का एलिमेंट्स रहते हैं वो पूरे इसमें रहता है. अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट ये है, से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब है जो भी है सबसेट्स, तो सबसेट्स का एलिमेंट पूरा इसमें रहते हैं एलिमेंट्स. That A is equals to, we can say 1 3 5 7. B is equals to, we can say that 2 4 6 8 10. Okay. And C is equal to, we can write 6 7 8 9 10. Okay. तो अभी देखो ए बी सी, ये तीन सेट का एलिमेंट्स इसमें है या नहीं. These are all the subsets of universal set U. Okay, so U is the universal set. U और हमें इसे mu, let us say, भी represent कर सकते हैं. Please note down this. Venn diagram. फेमस मैथमेटिशियन वेन ने सेट्स रिप्रेजेंट करने के लिए वेन डायग्राम्स को इन्वेंट किया गया है. तो वेन डायग्राम्स आर द क्लोज्ड फिगर्स, these are the closed figures used to represent sets. Represent the sets are called Venn diagrams. अगर सेट ये 2 3 4 5 है, हमें कौन सा भी क्लोज शेप, तो सेट ए मानते हैं 2 3 एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 5. ओके, ऐसा 2 3 कॉमर्स रखो या ना रखो. सेट बी, अगर बी इज इक्वल टू ए ई है तो ये को ई रखो. सो तुम्हें सोचेंगे क्या सर टेक्स्ट बुक में सेट ऐसा राउंड है, लेकिन आपने कहा रहे ये आड़ा टेढ़ा डायग्राम क्लोज्ड फिगर है ना. तो Yes, sir. यूनिफॉर्मिटी के लिए एक्चुअली इस सेट को हम क्लोज्ड फिगर, बॉन्डेड फिगर कौन सा भी शेप में लिख सकते हैं, लेकिन कपड़े पहने तो कौन सा भी पहन सकते हैं, लेकिन अच्छा ही क्यों पहनते हैं? अच्छा दिखने के लिए. यहाँ भी अच्छा दिखने के लिए हम रेगुलर शेप का फिगर, सर्कुलर फिगर्स यूज कर रहे हैं. ओके, अंडरस्टैंड.
तो हम इसको सेट ए कह सकते हैं और Yes, sir. दूसरा ले तो सेट बी लिख सकते हैं वैसा। ओके, और यूनिवर्सल सेट को हम कैसा, यूनिवर्सल सेट म्यू को का वेन डायग्राम है रेक्टेंगल। ओके, टॉप राइट कॉर्नर में ये and next Venn diagram for union of sets. Number one, union of sets. If there are common elements, we write like this. सेट ए है, अगर ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स है तो हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये कौन सा भी डायग्राम जो है ना, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, इसलिए हम इनको रेक्टेंगुलर वेन डायग्राम दैट इज यूनिवर्सल सेट म्यू में ही डालते हैं, समझे? ये जो है ना कॉमन। Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन अलग होता है, शेडिंग से होता है। शेडिंग कैसा करते हैं, देखो ए को हम शेड करते हैं कैसा, इस हॉरिजॉन्टल है सेट ए का। सेट बी का वर्टिकल लाइंस करेंगे। तो यहाँ पर ए यूनियन बी, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, पूरा होता है। ओके, Yes, sir. पूरा शेड, एंटायर शेडेड रीजन, एंटायर शेडेड रीजन। तो ये यूनियन भी क्या होता है, ये इज इक्वल टू हमने आड़ा डाला है, फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस डाला है और बी वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट किया है, लेकिन ये यूनियन बी में पूरा आता है, इसलिए यहाँ पर देखो इधर बाहर एक भी लाइन नहीं आया। ये यूनियन बी क्या होता है, एंटायर शेडेड रीजन होता है, ठीक है ना? Yes, sir. अभी हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इसमें ही ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है सेट ऑफ एलिमेंट दैट आर कॉमन टू ए एंड बी, ए में भी रहना और बी में भी रहना। तो ये है ना यहाँ पर दिस रीजन, ये रीजन में जो रहता है वो ए में भी रहता है, बी में भी रहता है। यहाँ जो बाजू रहता है ये ए में ही रहता है, बी में नहीं रहता है। And here whatever the elements are present this side, they are in only in B, they are not in A. Understand? So what is the common region now? One is like this, another is like this. Wherever we get intersection region here, this is the A intersection B region है। ये क्या है, ये intersection B है। A union B पूरा है, समझ में आया? Yes, sir. और हम a माइनस बी डालते हैं, a माइनस बी। ये पूरा सेट a में से b को निकाल दो, काट दो, काट दिया तो क्या होता है, we get only left with the region with horizontal lines, ये lines। तो ये होता है a माइनस बी रीजन, a में से b की चलेगा। ये होता है b माइनस ये रीजन, तो ये होता है b माइनस ए। इसमें क्या है, ओनली वर्टिकल लाइंस, ओनली वर्टिकल लाइंस इज b माइनस ए। समझ में आया? अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now what you disjoint sets? Let us see the Venn diagram for disjoint sets. Disjoint sets के लिए
वेन डायग्राम देखते हैं, इसमें भी हम यूनिवर्सल सेट डालते हैं म्यू, और ये ए है और ये बी है। इसका मतलब क्या है? ए अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन से करें, बी वर्टिकल लाइन से करें, और ये माइनस डिसजॉइंट सेट्स में क्या है? ये इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी, इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है ना, कॉमन एलिमेंट नहीं रहता, इसलिए अलग अलग है दूर दूर में। अगर यूनियन कॉमन एलिमेंट्स है तो ये ऐसा आ जाता है, समझ में? नव कॉपी करो वेन डायग्राम, एक एक करते कॉपी करो, और उसके लिए क्लास खत्म करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट Yes, क्लास sir. I will inform you. It will be most probably day after tomorrow. Okay? Yes, Okay. sir. कल का तो वीडियो लेसन रहता है 30 का,